Namaste friends, this is Tarun Kumar Das working in Kendriya Vidyalaya Koraput. Welcomes all of you for today's mathematics class. We are going to discuss about the topic area of triangles inside a rectangle of the chapter How many squares for class 5. This topic deals with comparing area of triangles inside a rectangle. Now, let us go for the objectives. The objectives are number 1, compare the area of triangles inside a rectangle. Number 2, calculate the area of different triangles inside a rectangle. Draw triangles with same area inside a rectangle. Hello friends, let's learn how to calculate the area of triangles inside a rectangle. दोस्तों आज जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जिंदगी भर आपके काम आएगा। इसमें ट्राइंगल्स के बारे में एक टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में जहां से ये विषय को लिया गया है। इस विषय को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इनसाइड ए रेक्टेंगल। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्राफ शीट है और यू कैन से इट ए ग्रिड शीट और ए ग्राफ शीट और यू कैन से आल्सो a graph paper or a squared sheet like this. It is also available in the market. You can take it also. So here let's draw a triangle. Here we got a triangle. This is the right triangle. Its base, you can see this is the base of the triangle. It is one side of the rectangle. So now the red triangle and the white triangle both are symmetrical in nature. Symmetrical means both are looking alike. Its side is equal to this side. This side is equal to this side, and both are having the same side, common side. So both of the triangles are equal in all respect. They are called as symmetrical. And when these two triangles are joining together, they are forming a rectangle. जब ये दोनों ट्राइंगल मिल जाते हैं तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। तो अभी कैलकुलेशन करना है कि इस रेक्टेंगल जो फॉर्मेशन करते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। अगर रेक्टेंगल का एरिया हमें पता चल जाएगा इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया उतना ही है। अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया उतनी ही है तो एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसका आधा होगा। तो देखते हैं इसका एरिया क्या है। इसका एरिया है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, फिर 8 16, फिर 8 आएगा 24, फिर 32 आएगा, फिर आएगा 8 40 48। तो अभी देखते हैं इट मीन्स एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, as the area of the rectangle is 48 square centimeter. So the area of the triangle will be half of the rectangle's area, that is half of 48. It means 24 square centimeter. This is all about example 1. Now let's discuss another example, say example 2. Here you can see how much is the area of the green triangle. Same squared sheet is there. There is no change, and same area is also there because we are going to compare that area of the triangles in the same rectangle, not different rectangles. Though for different figures I have taken, but the area is same. Next step. So here you can see a green triangle. जो ये green triangle दिख रहा है, अब इस green triangle के एरिया निकालेंगे। इस ग्रीन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर पाएंगे। एक तरीका है कि इस ग्रीन ट्राइंगल को एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रीन ट्राइंगल को दोनों हिस्से में बांट देंगे। जब टू पार्ट कर देंगे इसको, तो ये एक पार्ट जो है ये एक रेक्टेंगल के अंदर आएगा और ये भी एक रेक्टेंगल के अंदर आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। Let us make the triangle into two parts at the middle and form two triangles A and B. So here the middle line, red line you can see,
it divides the triangle into two parts, and the two parts names are A and B. Now, triangle A and B are inside two different rectangles. ये जो A ट्राइंगल है और ये B ट्राइंगल है, दोनों के दोनों अलग अलग दो रेक्टेंगल के अंदर है। देखिए कैसे रेक्टेंगल आते हैं, दो रेक्टेंगल, एक रेड रेक्टेंगल और एक ब्लू रेक्टेंगल, आपको दिख रहा होगा। तो ये रेड रेक्टेंगल जो है, इसका आप देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है, ये इसको क्या कर रहा है, इसका आधा होगा। तो पहले पता लगा इस रेड रेक्टेंगल का एरिया कितना है, उसका आधा लेने से ए ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। फिर ब्लू रेक्टेंगल का एरिया कितना है, उसका आधा लेने से बी ट्राइंगल का पता चल जाएगा। अब दोनों को अगर एरिया जोड़ दिया जाएगा तो हमें टोटली बड़ा ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो लेट्स टेक द प्रोसेस। एरिया ऑफ रेड रेक्टेंगल is 24 square centimeter. So the area of triangle A will be half of that one, means 12 square centimeter. Next, area of the blue rectangle is 24 square centimeter. So area of B triangle will be half of that one, that means 12 square centimeter. Next, area of the big triangle is area of the triangle A plus area of the triangle B, which means 12 plus 12, which is equal to 24 square centimeter. Now let us take another example, example 3. Here you can see in example 3 how much is the area of the yellow triangle. Let's draw a yellow triangle. This is the yellow triangle. Let us make the triangle into two parts at the middle and form two triangles. The same process we have to follow. The same process means here you can draw a straight line from the vertex. If you will draw this one, then this triangle has been divided into two parts. Here triangle A, triangle B. Next, we have to form the rectangles. Triangle A and B are inside two different rectangles. Here one red rectangle and one blue rectangle. So here first calculate the area of the red rectangle. The area of the red rectangle is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, and this side also 6. So totally 36. Area of red rectangle is 36 square centimeter. So the area of triangle A will be half of the area of red rectangle. That means 18 square centimeter. Similarly, calculate the area of a blue rectangle. Area of blue rectangle is 12 square centimeter only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 only. So area of this triangle, B triangle, will be half of the blue rectangle's area, that is 6 square centimeter. Now calculate the area of the yellow triangle. Area of the yellow triangle will be area of triangle A plus area of triangle B. Totally if you will add, you will get here 18 plus 6, which is equal to 24 square centimeter. In example 1, we had got 24 square centimeter. In example 2, we had got 24 square centimeter. In example 3 also, we have got 24 square centimeter. Now we have to sum up all our findings now. हमारा findings क्या है? हम तीनों ग्रिड सेट लिए थे, तीनों का तीनों एरिया सेम है। इस पे देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 this side and this side 6, so totally 48. Here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this side 3, 4, 5, 6, 48. Here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 48। तीनों का 48 एरिया है। अब देखते हैं, तीनों ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमने ड्रॉ किया था वहां पे। ये तीनों वैसे फिगर था हमारा, ये तीनों फिगर का एरिया जो है सेम है। तो हमें क्या क्या इसमें मिला, देखिए। सबसे पहला है ऑल द ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेक्टेंगल। इस सारे के सारे ट्राइंगल देखेंगे, वो जो ट्राइंगल है वो सभी के सभी सेम रेक्टेंगल के अंदर ही है, कोई दूसरा रेक्टेंगल नहीं है इनका। नेक्स्ट, ऑल द ट्राइंगल्स टच द अपोजिट साइड्स। यहाँ पे देखेंगे ये ट्राइंगल यहाँ पे इस साइड को टच कर रहा है रेक्टेंगल का, यहाँ पे भी इस साइड को टच कर रहा है, ये भी अपोजिट साइड को टच कर रहे हैं, ये भी अपोजिट साइड को टच कर रहे हैं। नंबर 3 ऑप्शन क्या है? ऑल द ट्राइंगल्स हैव सेम बेस। बेस मतलब ये वाला कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, जहां से ट्राइंगल बनती है ऊपर की तरफ। ये वाला जो बेस है, ये बेस यहाँ पे जितना है पूरा साइड ले लेता है, और ये भी बेस वही सेम साइड है, ये भी बेस का भी बेस सेम साइड है, मतलब तीनों का तीनों बेस जो है सेम है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट, ऑल द ट्राइंगल्स हैव सेम एरिया। हमें मिला तीनों का एरिया जो है
सेम मिला हमें ये। उसके बाद पता चला कि एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हर एक ट्राइंगल का एरिया उस रेक्टेंगल का हाफ होता है। मतलब इसका एरिया जितना है, इसका भी एरिया उतना है, इसका भी एरिया उतना है, और वो है इस रेक्टेंगल का एरिया का आधा, हाफ। इससे क्या पता चलता है? सो द ट्राइंगल्स ड्रॉन इन ए रेक्टेंगल विथ सेम बेस हैव इक्वल एरिया। याद रख लीजिए, triangles drawn in a rectangle with the same base have equal area. Next, कभी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या जब बताया गया कि इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए अगर ट्रायंगल छोटा कर दी जाए या ट्रायंगल को बड़ा कर दी जाए तो फिर क्या सेम एरिया मिलेगा हमें? देखते हैं, आपके एक एक डाउट को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है। देखते हैं, दोनों सेम ले लिया हमने रेक्टेंगल, दोनों सेम रेक्टेंगल लेने के बाद हम दो ट्रायंगल भी ले लिए। Here you can see one red triangle and one blue triangle. In the red triangle you can see here, my dear friends, its base and its base both are different. It is touching the opposite sides. It is also touching the opposite sides, but their bases are different. So my finding is that these two triangles will not have the same area though they are inside the same rectangle. अगर वो दोनों के दोनों सेम रेक्टेंगल के अंदर है फिर भी दोनों का एरिया सेम नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि दोनों का जो बेस है सेम नहीं है। इसका बेस जो है इसका बेस भी सेम नहीं है। दोनों का बेस सेम होना चाहिए था। ये पूरा का पूरा साइड का बेस लेना था इनको। नेक्स्ट, अभी और एक डाउट हो जाता है। देखिए कि देखते हैं, लेट्स मेक इट क्लियर वंस अगेन। अनदर वन, सेम ग्रिड शीट है। इसमें देखिए स्क्वायर शीट के अंदर दो ट्राइंगल है, वन इज रेक्टेंगल अनदर वन इज ब्लू ट्राइंगल। कुछ परिवर्तन लग रहा है आपको। इसमें देखेंगे दिस टू ट्राइंगल्स विल नॉट हैव द सेम एरिया दो दे आर इनसाइड द सेम रेक्टेंगल। अगर दोनों के दोनों सेम रेक्टेंगल के अंदर है फिर भी इन दोनों का एरिया सेम नहीं होगा। आपको कारण पता चल जाता होगा। कारण ये हो सकता है कि दोनों को भले ही देखिए बेस सेम है और रेक्टेंगल भी सेम है पर एरिया सेम नहीं, क्योंकि दोनों ये जो टच कर रहा है अपोजिट साइड को, ये अपोजिट साइड को टच नहीं कर रहा है। तो इसका कारण है सेकंड ट्राइंगल इज नॉट टचिंग द अपोजिट साइड्स। अनदर क्वेश्चन उठता है यहाँ पे मन में सवाल उठता है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स ऑफ सेम एरिया वी कैन ड्रॉ विद इन द रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल के अंदर हम कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं जिसका एरिया सेम रहेगा? ये मन में बार बार क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन हमें यहाँ देख सकते हैं ग्रिड्स जो है, लाइंस जो है 3 4 5 6 7 है, 8 है, तो हम मैक्सिमम सोचते हैं कि हम शायद 8 या 9 8 या 9 रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप चाहे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक रेड ट्राइंगल हो गया, नेक्स्ट एक ब्लू ट्राइंगल, नेक्स्ट वन येलो ट्राइंगल, नेक्स्ट वन वन ग्रीन ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए 4 ट्राइंगल को मैंने अलग अलग जगह पे लेकर ड्रॉ किया, लेकिन सबका बेस जो है सेम है। अभी बात उठती है, यहाँ पे भी जगह एक बन सकता था, यहाँ पे भी एक बन सकता था, यहाँ पर भी एक बन सकता था, यहाँ पर भी लेकर यू कैन ऑल्सो ड्रॉ ए ट्राइंगल। बट आई कैन से यू कैन ड्रॉ सो मेनी ट्राइंगल्स, यू कैन ड्रॉ as many triangles as you want. हाउ? क्वेश्चन उठता है कैसे ना। देखिए जो लाइन ऊपर वाला लाइन है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आप कोई भी पॉइंट को टच करिए, सिर्फ ये ग्रिड जहां पे मिलता है वहां पे टच करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी पॉइंट को टच करिए और यहाँ पे जोड़िए आप, लेकिन बेस को जोड़ना है, सेम बेस को जोड़ना है। तो आपको बहुत सारे ट्राइंगल मिलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स अनलिमिटेड होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं, तो इसी तरह हम बहुत सारे बना पाएंगे। तो आने वाले क्लास में आप और चीज सीख पाएंगे इसके लिए। अभी दोस्तों अब बारी आ रही है एक छोटी सी चीज जो है आपके लिए एक एक्टिविटी है। क्या है एक्टिविटी? लेट्स डू सम फन। एक्टिविटी करेंगे, मजा भी लेंगे। तो क्या है एक्टिविटी? टेक ए ग्राफ शीट। आप एक ग्राफ शीट ले लीजिए, मार्केट में मिलता है, एक शीट ले लीजिए। ड्रॉ ए रेक्टेंगल, उसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लीजिए।
5 ट्रायंगल्स ड्रॉ होने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट करिए। एरिया कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें कंपैरिजन कीजिए कि उसका एरिया सेम आ रहा है या फिर नहीं, क्या मैं गलत बताया हूं या फिर मैं सही बोला हूं। इसके बारे में चर्चा करना और जानकारी लेना आपका कर्तव्य है, इसको आपको करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना, मुझे खुशी हुई। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका क्लास अच्छा लगा, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल तरुण कुमार दास को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन एक आता है, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और इसमें बेल आइकन आता है, उसको भी दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव है मेरे लिए, कुछ सजेशंस है, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये भी किसी दूसरे का काम भी आ सके। सो और भी इसके साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे वर्कशीट्स भी अवेलेबल है और कुछ क्विजेस भी अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो ये वाला मेरा साइट है https://tarunkumardas.blogspot.com। इस पे आप फॉलो कर सकते हैं ताकि अपडेट होने के लिए। और इस साइट को आज ही खोल दीजिए और खोल के अगर नहीं किए होंगे आप क्विज, तो आप उसको क्विज को अटेंड कर लीजिए और कुछ वर्कशीट से उसको डाउनलोड कर दीजिए और करिए। और अपना एक्टिविटी भी अगर बना रहे हैं कुछ, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है tarunkumar.das@gmail.com। So thank you my friends for watching. Thank you once again.